Hello students. Today we will discuss about the matter. Matter एक इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो ICSE और CBSE दोनों और इवन स्टेट बोर्ड तक में तीनों बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जितनी भी हमारी साइंस है वो टोटल बेस्ड होती है मैटर टॉपिक पर. You have to know matter clearly. Now, today we will discuss about the matter. हिंदी में इसे द्रव्य बोलते हैं. होता क्या है, हमारे चारों तरफ हमारे आसपास जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, वो मैटर होती है. जैसे ये बुक, दिस बुक इज अ मैटर. ये मैटर क्यों है? क्योंकि ये जगह घेरती है. इट ऑक्यूपाइज स्पेस. इसमें मास है और इसे हम अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं. वी कैन टच इट. यू कैन टच इट. सो इट इज मैटर. दिस पेन इज ऑल्सो अ मैटर. वाई इज इट मैटर? क्योंकि ये भी जगह घेरता है, इसमें भी मास होता है और हम इसे अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं. वी कैन कैच इट, वी कैन होल्ड इट, वी कैन टच इट. सो दिस पेन इज ऑल्सो अ मैटर. सो फाइनली वी कम टू द पॉइंट दैट मैटर. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, occupies space, can be perceived by our senses. That is matter. कोई भी चीज जो भी हमारे अराउंड होती है, like this chair, table, fan, TV, anything जो आप देख सकते हो, जो आप फील कर सकते हो और जिसमें स्पेस घेरने की एबिलिटी होती है. लाइक आप बुक को टेबल पर रखेंगे तो वो टेबल का उतना एरिया कवर कर लेगी, तो उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है. तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस. दैट इज मैटर. मैटर दो तरह का होता है. Now, classification of matter. Two types of matter are there. What? First of all, living matter and non-living matter. What is living matter? Living matter क्या होता है? Everyone, like animals, like man, like birds, everyone. That is matter. Everyone. And what is non-living? Non-living, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया. I have given an example of a book, of a table, of a pen. That is non-living thing. But they are matter. Why? Because they occupies space, they has mass and they can be perceived. Means felt by our senses. हम इन सब चीज़ों को फील कर सकते हैं और हम इन्हें कहीं भी रखेंगे, ये जगह घेरेंगी. जब जगह घेरेंगी इट मीन्स इट हैज़ वॉल्यूम, इट हैज़ स्पेस, इट ऑक्यूपाइज स्पेस. और हम इसे टच कर सकते हैं. टीवी को हम देख सकते हैं. कुछ भी चीज़ हम देख सकते हैं वो भी मैटर होता है. जिसे हम टच कर सकते हैं वो भी मैटर होता है. सो anything and you can say everything which is around us, that is matter. And there are two types of matters, living matters and non-living matters. In living matters, every living thing can be studied, like human being, like animals, like bird. And in non-living things like tables, like trees, like chairs, anything.
Now come to the composition of matters. Every matter, that is composition of matter. Students, कोई भी चीज किसी ना किसी चीज की तो बनी होती है ना, किसी की कंपोजिशन होता है हर चीज का. आप म्यूजिक सीखते हैं उसमें भी कंपोजिशन होता है, हर चीज में कंपोजिशन होता है. Now today we will discuss about the composition of matter. Matter is composed of molecules, atoms and ions. Three things, which is the composition of molecules, atoms and ions. So matter is composed of or made up of molecules, atoms and ions. Now come to the states of matters. What are the states of matters? There are three states of matter: solids, liquids and gases. Solids क्या होते हैं? You tell me what are solids? Solids like books, like pens, like table, anything which is hard, okay, which is very hard, that is solid. And liquid like milk, water, anything which is not hard. Later we will discuss about the characteristics of solids, liquid and gases. There are very big difference between these three states. So now come to the gases. Gases, you know क्या होती हैं gases? Oxygen, you inhale oxygen, you exhale CO2, carbon dioxide, that is gases. And in your kitchen you can see, kitchen में जो gases होती हैं, सिलेंडर होता है उसमें gases होती है. And what is the difference between solid, liquid and gases? What is solid? Solid, that is hard, and liquid, that is not so hard as compared to solid. And what is gases? What is gases? Gases are like CO2 and oxygen and ozone, anything which is in gaseous form. Now come to the solid state. What is solid state? Solid state has definite mass, definite volume, definite shape, and they are highly rigid, very rigid. You can see this, anything you can take for example, like table, like book is hard, okay, it has fixed volume, change नहीं हो सकता, okay, and fixed mass, definite mass होता है solids का, and they are very highly rigid, जल्दी से उनकी shape change नहीं हो सकती, and they can't flow. क्या ये बुक फ्लो कर सकती है? नहीं. ये टेबल फ्लो कर सकती है? नो. Anything which can't flow, and they have high density also. Now they are very not compressible. उनको पुश प्रेशराइज भी नहीं किया जा सकता. हम बुक को कितना भी प्रेशराइज कर लें, उसका मास, उसका वॉल्यूम, उसकी रिजिडिटी फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, कंप्रेस नहीं होगी. दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल, एंड दे हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस. नाउ come to liquid state. What is liquid state? You can take water in a glass and pour it into any
jug or any other container, what will happen? It will easily flow. Okay, it can flow easily. अगर आपकी टेबल पर अभी गिलास का पानी रखा है, एक पानी का गिलास रखा है, और अगर वो गिर जाए तो क्या हो गया? क्या वो एक जगह फिक्स रह पाएगा? नहीं, वो आराम से फैल जाएगा, उस टेबल पर चारों तरफ फैल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम वो हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है वो। लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं कर सकता। सॉलिड गिरेगा भी तब भी वो एक ही जगह पर गिरेगा, उसके शेप में या उसका उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और सो लिक्विड हैव डेफिनिट मास, डेफिनिट वॉल्यूम, बट नॉट डेफिनिट शेप, क्योंकि शेप वो उसी कंटेनर की ले लेता है जिस कंटेनर में वो रखा जाता है। अगर आप मिल्क को कप में रखेंगे तो वो कप की शेप ले लेगा, अगर आप मिल्क को गिलास में रखेंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, अगर आप मिल्क को किसी भगोने में रखेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच दे आर केप्ट एंड दे आर लेस रिजिड। लिक्विड लेस रिजिड होते हैं, रिजिडिटी नहीं होती। दे कैन फ्लो एंड दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच they are stored. Liquid have comparatively less density. Liquids की as compared to solid density less होती है, कम होती है, and they are slightly compressible as compared to solid. Right? Now come to the gaseous state. ना हम गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हाट इज आर गैसेस, व्हाट और गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अगर अभी हम यहाँ पर इस रूम में धूप बत्ती जला देते हैं, क्या होता है? धूप बत्ती जलाते ही उसका पूरा जो धुआं है वो सारे कमरे में फैल जाता है, एक एक कोने में फैल जाता है, इवन दूसरे रूम में भी चला जाता है, एक जगह फिक्स नहीं होता। आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हो ज़्यादा, वो 2 मिनट में चारों तरफ फैल जाएगा। तो गैसेस हैव अ डेफिनिट मास बट नॉट डेफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनिट शेप। उसकी शेप भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जहाँ रखोगे वहीं फैल जाती है, चारों तरफ पूरी तरफ फैल जाएगी वो, और उसे स्पेस चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर सपोज हमने रूम के एक कोने में कोई गैस छोड़ी है तो ये नहीं कि वो वहीं फिक्स हो जाएगी, वो चारों तरफ फैल जाएगी, बहुत पूरी तरह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। एंड दे कैन फ्लो ईजली, वेरी ईजली, freely, even you can say freely, and that they can take the shape and volume of the container in which they are stored. जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसकी शेप और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्योंकि अब देखो, जैसा किचन में एक एलपीजी सिलेंडर होता है, गैस अगर हमने 2 मिनट उसको खोल देंगे तो क्या होगा? चारों तरफ गैसेस फैल जाएगी। वही गैस जो एक छोटे से सिलेंडर में स्टोर थी वो पूरी एनवायरनमेंट में फैल जाती है। यू कैन सी ना, तो पूरी तरह से फैल जाती है वो। लेकिन जब हम इसी गैस को कंप्रेस कर फॉर्म में, जितनी भी स्टोर्ड गैसेस होती हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड फॉर्म, राइट, एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल। उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड को एक लिमिट तक आप कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैसेस को हम कंप्लीटली कंप्रेस कर सकते हैं। अब उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में हम सिलेंडर में स्टोर करते हैं और हर जगह यूज़ होती हैं गैसेस। एंड गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी, हाईली कंप्रेसिबल एंड don't have no free surfaces. Okay,
Now is it clear to you what are matter and what are the composition of matter and what is the classification of matter and states of matter? Now is it clear to you? Come to the main point. Matter is anything or everything that has mass, occupies space, can be perceived by our senses, and it is composed of molecules, atoms and ions. And there are two types of matters, living and non-living. And there are three states of matters, solid, liquid and gases. In solid state, they have fixed mass, fixed volume and fixed shape. And in liquid state, they don't have fixed shape. They can flow easily. They can take the shape of that container in which they are kept. And in gaseous state, they have definite mass, no definite volume or shape, and they can flow and take up the volume of the container in which they are stored. They are highly compressible. Now, today we have discussed about the matter, their classification and the three states of matter. In our later video, we will discuss about the interchanges of states of matters. Thank you, students. Thank you very much.